India, good evening. Viewers, you're watching the News Hour special edition. My name is Pranesh Kumar Roy. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been sent to ED custody. He's under arrest. He has been remanded to ED custody till March 28. But as the Chief Minister remains in custody over charges of being the kingpin or the alleged kingpin in the liquor gate, his wife Sunita Kejriwal read out his message. Just look at this frame. The message was delivered through Kejriwal's wife. Kejriwal said that his life is dedicated to the nation and asked the citizens to pray for him. The message said that Kejriwal will continue to work in service of the nation, whether he is inside or outside the prison. He also assured that he will return soon and will fulfill promises made to the people. This indicates that Kejriwal will remain on the CM's chair, as Aam Aadmi Party has already declared. But what is hard to miss is that Sunita Kejriwal read out the message from the exact same frame which was used by Kejriwal to make media addresses. Spot the difference if you can. Here's the message. भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। Viewers, many are seeing a larger message in this message delivered by Sunita Kejriwal from the same setting as that of the Chief Minister himself. Slamming Kejriwal for refusing to resign, the BJP reminded the Aam Aadmi Party and leaders of Team India of the fodder scam. Union Minister Anurag Thakur asked Kejriwal that while Lalu Yadav made his wife sit on the CM's chair, what will he do? He also mocked the angry protest by AAP leaders, saying there was a race among AAP leaders to occupy the CM's chair, even as, in his words, Bhabhi ji came out with a parcha to read Kejriwal's letter. जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है? ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं जी। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते, पर उनको क्या पता भाभी भी आज पर्ची लेकर बाहर आई हैं। Now viewers, as Kejriwal clings to CM's chair, old videos of him have gone viral. In fact, videos from 2012, he is heard saying that there is a problem with the CM's chair and that whoever occupies it becomes corrupt. In another video from 2014, he is heard saying that to leave CM's chair, one needs guts. कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। Now, that was Arvind Kejriwal a few years ago. Let's open this up, viewers. Sanju Verma, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Sameer Chowgaonkar, senior journalist, Kamruzaman Chaudhary, political analyst, Ravi Srivastav, Piyush Joshi, both political analysts, they complete the panel. Good evening, all of you. Now, before we go any further, here are some breaking inputs we are tracking this minute. While Kejriwal is in ED custody, Times Now has accessed
the inside track on the line of questioning. Top sources have indicated to your channel that the questioning today went on for good 3 to 4 hours. Arvind Kejriwal was asked about his role in Goa elections and the role the alleged kickbacks played there. Arvind Kejriwal was also asked about his role within the Aam Aadmi Party, things he does, things he does not do. Questions were asked on Vijay Nair, Sarath Reddy and Manguta Reddy. Kejriwal, we can tell you, as per our sources, has not been giving in fact straight answers. He's been evasive on most of them, answering in yes or no. And Kejriwal, we are learning, will be confronted with C. Arvind, and there is a possibility that Arvind Kejriwal and C. Arvind can both be drilled together. Now, having said that, and let's keep that information on our screen for some time, I want to begin by asking you, Ravi Srivastava ji, 2012 और 2014 में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, अभी मैंने वो सुनाया आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से चला सकता हूं. आज जब वो जेल में है तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो कुछ कहते थे, कुछ और कर रहे हैं. सुनीता केजरीवाल की क्या पोजीशन है पार्टी में? उन्होंने ये सीएम स्पीच कैसे दे दी? पहली बात तो ये कि आपको कैसे लगा कि वो सीएम स्पीच दे रही हैं? उन्होंने अपने निवास स्थान पर जो जगह है जिससे अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करते हैं, उस जगह से उन्होंने लोगों को अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाया. तो इसमें उसका क्या है कि मतलब उन्होंने कोई सीएम की चेयर पकड़ ली. दूसरी बात ये है, रवि श्रीवास्तव जी, जब मैंने बोला सीएम स्पीच तो मेरा मतलब ये था कि उन्होंने ही कहा कि ये जो सीएम है हमारे, जो अभी कस्टडी में है, उन्होंने मुझे दिया है, बताया है. मेरा मतलब वो था, लेकिन आप बेहतर जानते हैं जी. अरे हाँ, एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी ऐसी पत्नी है जो उनके बारे में इतनी चिंता करती है. और उन्होंने दिल्ली की सभी माताओं बहनों से कहा है कि आप मंदिर में जाकर के प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी मेरे पति और सीएम अरविंद केजरीवाल वापस आए. और जो 1000 रुपए देने वाला डिसीजन है वो पूरा होगा बिल्कुल, उसकी भी आप बिल्कुल चिंता ना करें. ये सारी बातें उन्होंने अपनी जो अपना संदेश है उसमें उन्होंने बताई हैं. तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है. क्योंकि ये तो अच्छी बात होगी रवि जी. मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है, जैसे मनीष सिसोदिया नहीं है, तो मनीष सिसोदिया की वाइफ मंत्रालय तो नहीं चला रही है, संजय सिंह की जो वाइफ है वो तो नहीं चला रही है उनका काम एमपी का. तो सुनीता केजरीवाल क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, हायरार्की में क्या है वो? कोई दूसरे जो आपके मंत्री हैं, एक से एक मंत्री हैं, आतिशी जी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, ये पढ़ सकते थे संदेश. भाई संदेश जिसको भेजा गया है उसने संदेश पढ़ा. अभी दूसरों को संदेश नहीं भेजा गया, जब उन्हें भेजा जाएगा तो वो भी पढ़ेंगे संदेश. ठीक है. तो जिसको भेजा गया है उसने संदेश पढ़ दिया, और उसको पढ़ देने से वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पद नहीं हासिल कर लेती है. तो ये मेरा ये कहना है कि बहुत से नेता इस देश के अंदर हैं जिनकी पत्नी उनको किसी भाव में नहीं रखती है और उल्टा उनसे अपना हक मांगती है. तो यहाँ पर एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति के बारे में इतनी चिंता करती है और प्रार्थना करती है कि वो नहीं, ये सब तो ठीक है, पति पत्नी तो ये ठीक है. देखिए, आम आदमी पार्टी को आम आदमी भी चिंता होनी चाहिए और लोगों की भी चिंता होनी चाहिए. परिवार तो खैर है ही है. अब बिफोर आई मेक दिस पॉलिटिकल, संजू वर्मा जस्ट 1 मिनट. समीर जी, राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रहा है जहां पे उन्होंने कहा था, यू नो, इफ यू आस्क मी, आई थिंक दिस ऑर्डिनेंस शुड बी टर्न अप एंड पुट इन द ट्रैश कैन. तभी वो भी कुछ नहीं थे सरकार में, लेकिन आके उन्होंने ये फरमान दे दिया था. देखिए, इस तरह की जो पार्टियां हैं जो परिवारवाद पे चलती है, जो करप्शन पे चलती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं
कि देश की राजनीति को, देश को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो परिवारवाद की पार्टी ने किया है, भ्रष्टाचार ने किया है और तुष्टिकरण की राजनीति ने किया है। आप देखिए कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंबई के अंदर खत्म हो रही थी, उस दिन स्टेज के ऊपर चंपई सोरेन के साथ किसकी वाइफ थी? हेमंत सोरेन की वाइफ वहां पर गई हुई थी, कल्पना सोरेन गई थी। कल्पना सोरेन किस हैसियत से उस रैली के अंदर गई थी? क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता है? और जब सीता सोरेन ने जब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि पार्टी को और मुख्यमंत्री को कल्पना सोरेन घर से बैठकर चला रही है। तो ऐसा होता है जब पार्टी का मुखिया भी एक हो, सरकार का मुखिया भी एक हो, तो उन्हें लगता है कि पार्टी हमारे घर की, हमारी जेब की और हम इसे चलाएंगे। या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, मतलब पार्टी के मालिक भी है और दिल्ली सरकार के मालिक भी है वो, और इसलिए उनकी पार्टी घर से चलती रही है। और जिस तरीके से उनकी पत्नी ने, सुनीता जी ने उनका संदेश पढ़ा है, यह बताता है कि अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है। सुनीता जी आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है अब लीड करेगी और नेताओं को ये बताएगी कि उन्हें प्रदेश किस तरीके से चलाना है। संजू वर्मा, व्हाई इज द बीजेपी सेइंग भाभी जी, अरविंद केजरीवाल हो जी, समीर जी समझ गया। संजू वर्मा, व्हाई इज द बीजेपी सेइंग भाभी जी पर्चा लेके आ गई हैं? व्हाई आर यू नो फोकसिंग सो मच on the background, the frame from which this message has been delivered? You know, Pranesh, I do not want to trivialize this debate, but Ravi Srivastava ji ने अभी इतना कुछ कह दिया, you know, delineating the virtues of भाभी जी, कि मैं भी थोड़ा स्तब्ध हूँ कि डिबेट क्या करने आई थी। और ये डिबेट, अरे रवि जी मैंने आपको नहीं टोका, समझ लो। अरे अच्छा बोलने दीजिए प्लीज रवि जी प्लीज, आई डिड नॉट हेकल यू। तो रवि जी ने जब इतना व्याख्यान कर दिया भाभी जी के बारे में, तो मैं समझ रही थी प्रणेश की डिबेट का टॉपिक क्या है, हम क्या डिस्कस करने आए थे, और हवा का रुख तो कुछ और ही बनने लगा। बट आई विल जस्ट से वन थिंग, यू नो, जो हिंदी में कहावत है प्रणेश, गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलती है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। And why I said this is because Kejriwal is the classic mauka parast, the classic opportunist, the classic snitch, the classic tattletale, the classic renegade, the classic double crosser, the classic turncoat, and the classic Quisling and Judas. And the reason I say this is because this is the same man who said that यदि एक इन्वेस्टिगेशन की बू भी आई, यदि हमारे किसी भी सहयोगी के खिलाफ इल्जाम की बू तक आई, even if there's a whiff of corruption, whether or not the court decides for or against, I will ensure that me and my colleagues step down in the larger interests of naitikta, in the larger interests of virtue, in the larger interests of political morality, in the larger interests of moral high ground. तो केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूं कि आज नैतिकता की दुहाई देने वाले कुर्सी को फेविकॉल के साथ लगाकर कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। यू नो, वी आर गोइंग टू सी अ रीरन ऑफ सुनीता केजरीवाल becoming Rabri 2.0, but that is not the point. The point is this: what does the jail manual say? The Delhi jail manual of 2018. There is rule number 585, and rule number 585 of the jail manual of 2018 clearly says that irrespective of who you are, you could be Kejriwal or Sisodia or Sanjay Singh or XYZ, you are allowed to meet only a certain set of people within a certain time period in the day, maximum twice or thrice a week, and initially it is only your close family members, not even kith and kin, only blood relations. तो पहली बात तो ये कि केजरीवाल किस तरह जेल मैनुअल का उल्लंघन किए बिना सत्ता चलाएंगे जेल के अंदर से, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। जवाब देने दीजिए भाई। जेल मैनुअल का उल्लंघन करना पड़ेगा। संजू वर्मा, so what you are saying is Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party is no different from other Parivarwadi parties, that it has once again put Parivar over people, परिवार ओवर प्रिंसिपल्स, प्रोबिटी, व्हाट हैव यू। रवि श्रीवास्तव जी इसका जवाब दीजिए, प्रॉक्सी सीएम के तरह चला रहे हैं आप। नहीं प्रणेश, पहली बात तो मैं मॉरल हाई ग्राउंड लेने वालों को एक बात बता दूं कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष
कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, पार्टी से निकाले गए थे और उनका निष्कासन हुआ था। तो कम से कम इतनी शर्म तो कर ले कि दूसरे को मॉरल नैतिकता सिखाने से पहले अपने घर में नैतिकता सीख ले। दूसरा, एक दूसरे मित्र को पैनलिस्ट अभी बता रहे थे कि उन्होंने अभी सुनीता जी चार्ज टेक ओवर कर लेंगी और आ जाएंगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी वगैरह वगैरह। तो भाई साहब, हमारे यहाँ ये चलन नहीं है कि हम किसी के घर में जाकर के झांके कि उसको किसने कौन रात में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने क्या संदेश दिया, वो क्या करने वाली है। वो सब फैसला पार्टी है, पार्टी का एक संगठन है, पार्टी में एक हायरार्की है, पार्टी अपना निर्णय। यही तो सवाल है रवि जी, जब पार्टी है, संगठन है, हायरार्की है, तो उसमें परिवार कहां से आ गया? वो तो पार्टी में है ही नहीं। पीयूष जोशी के पास चलते हैं, 1 मिनट। यहाँ परिवार आया ही कहां? अच्छा ठीक है, परिवार नहीं आया। पीयूष जोशी, द बीजेपी सेज दिस इज द लालू राबड़ी मॉडल, प्रॉक्सी चल रहा है यहाँ। कैसे? एक स्पीच देने से, अपने पति का एक संदेश दिल्ली की जनता के सामने रख देने से प्रॉक्सी चलता है? इतनी समझ है बीजेपी की? यदि कोई पत्नी जिसको कि जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि भाई उसके पति को झूठे केसेस में फंसा के जेल में डाला गया है, और यदि उसका पति अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास करके उसको एक मैसेज देता है कि आप सबसे ज्यादा कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकती हो मेरे मैसेज को, क्योंकि आपके नाम के साथ में केजरीवाल शब्द जुड़ा हुआ है, उस कम्युनिकेशन को सिर्फ जनता तक पहुंचाने के लिए परिवारवाद हो गया। और जय शाह जो है वो अभी स्टेडियम के उद्घाटन करते हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने फिर रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ यदि किसी एक व्यक्ति की इस देश में हुई है तो वो माननीय गृह मंत्री के बालक है। और वो जो अबोध बालक है वो क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं, पूरी दुनिया को पता है। वो परिवारवाद नहीं दिखता है। दूसरा मैडम, आप तो 10-10 मिनट बोलते हो मैडम, आपको इंटरप्ट भी नहीं करते, थोड़ा सा हमको बोलने ले दिया करो। नहीं तो देखिए, हमारे नेता को जेल में डाल दिया, नंबर 2, 3, 4 सबको जेल में डाल दिया, पार्टी को पीछे भेज दिया। आप बोलो तो मैं हाथ जोड़ के मुंह पे टेप लगा के बैठ जाता हूँ चुपचाप। आप ही बोल लो। अरे पीयूष जी प्लीज, ये देखिए, ये विक्टिम कार्ड तो मत खेलिए, मत ऐसे मत बोलिए। आपके नेता भी यही बोल रहे थे कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, सब चले गए, ऐसा मत बोलिए। कोई टेप नहीं लगा रहे आप पे, प्लीज बोलिए आप। Yeah, allow me to complete. Of course. What I'm trying to say that the other co-panelists as well also said कि प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि भाई इस देश को यदि किसी 2 चीज ने बर्बाद किया है तो एक परिवारवाद है और दूसरा भ्रष्टाचार है। तो परिवारवादियों की तो लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी में शुरू करूंगा तो 9:30 बज जाएगी। दूसरा, भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है, अजीत दादा पवार के भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है पर वो मुख्यमंत्री बने पड़े। हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है पर वो आसाम में के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट के पोस्टर बॉय बने पड़े। दिगंबर कामत ने बर्बाद किया है पर वो भारतीय जनता पार्टी की गोवा के एक बड़े नेता है। छगन भुजबल ने बर्बाद किया पर वो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बीजेपी की बात अगर 1 मिनट नहीं भी करें तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कट्टर करप्ट है। आप पंजाब कांग्रेस के हुज हू निकाल लीजिए, वो बोल रहे हैं कि ये इन्होंने चोरी की है, करप्ट है ये, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का यदि कोई आधिकारिक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात बोलता है कि भाई केजरीवाल जी को जेल में रहना चाहिए और अच्छा है तो बात करते हैं, नहीं तो नेता तो बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात कह दी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे पास कुछ रिएक्शन है, मैं कब चलाऊं। अब आप सुनिए, ये सुनिए पीयूष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। पीयूष भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। पीयूष जी प्लीज थोड़ा जस्ट टू रीजॉग द मेमोरी ऑफ द व्यूअर, मैं आ रहा हूं पीयूष भाई, आप ही का चैनल है, आ रहा हूं, ये सुनिए जरा। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे 1 सेकंड भी और रह जाएं। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। यह शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है।
पीयूष भाई, आप एक प्रवक्ता बोल रहे थे, हमने प्रवक्ता चला दिया, बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री चला दिया। What I was talking about is in the recent past. अब आप 3-3 साल पुराने वीडियो निकाल के 2-2 साल पुराने वीडियो निकाल के बताएंगे तो उसका कोई वैल्यू है आज की तारीख में? आप क्या बात करते हो यार प्रणेश भाई। तो अच्छा ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने जो 3 साल पहले वादे किए थे उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। आप बोल दीजिए, आप यही बोल दीजिए पीयूष भाई कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो 3 साल पहले वादे किए थे उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा वायदा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया? उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोई आरोप लग गया नहीं लिए। अरे बहुत अभी प्रूव हो गया क्या? मैंने और भी रिएक्शन चला दिए। नाउ कमरुज़मान चौधरी, व्हाट हैज चेंज्ड? व्हाई इज द कांग्रेस टेकन अ यू टर्न? No, it's not a question of the U-turn. You know, Pranesh, you are misleading the nation through the debate tonight. Congress is very firm on its stand. दो चीज है यहाँ पे, एक या तो फिर हम कड़वा जहर पी कर भी हम साइनाइड से बचने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस देश को जिस तरह से साइनाइड का जहर का शक्ति पूरा देश को खोखला कर रही है, कम से कम उससे अच्छा है कि आम आदमी पार्टी का जहर हम पी ले। कांग्रेस का साफ तौर पे ये मानना है, लेकिन जो बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या और सब उनका सहयोगी दल, ये समझ ले कि आपने भ्रष्टाचार, आपने परिवारवाद, आपने तुष्टीकरण का बात उठाया, तो बीएस येडियुरप्पा का एक लड़का एमपी है और एक लड़का प्रदेश का अध्यक्ष है। आप अगर कांग्रेस का फ्रीज अकाउंट कर सकते हैं, आप अगर केजरीवाल को अंदर कर सकते हैं, आप अगर हेमंत सोरेन को अंदर कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाए थे जेन हवाला मामले में आडवाणी जी को जेल जाना चाहिए था उस वक्त। Chowdhury, go tell the courts in the income tax matter. No, 1 minute. The Congress party has defaulted. I am not allowing you. No. I am not allowing you to peddle half truths here. Please, Kamaruzaman Chaudhary, please. I have great regards for you, sir, but I can't allow you. You do this on a daily basis now. Please, you are mixing, confusing issues. I am not going to allow this. No, in the income tax matter, there is no relief from the High Court. The Congress must go seek relief from the court. And the other case that you're talking about, in which you say Mr. Advani should be jailed, you go petition the court. The courts, the courts can send Mr. Advani and whoever you want to jail if the court has evidence. Sameer ji, मैं आता हूं आपके पास, but Sanju Verma, answer the larger question on, on hypocrisy, on corruption and dynasty. ठीक है. अभी Pranesh, now I need let's get a response from the BJP. Both of you have made serious charges. Piyush ji, Kamaruzaman Chaudhary, please. Sanju Verma, quickly. I am surprised at how you Pranesh, why is this man giving background music? Some pertinent No, please, let's... You are the anchor of the show. One person speaks at a time. Kamaruzaman ji, let the BJP respond to the charges, please. Yes. Pranesh, let me tell you, very quickly, I will not be verbose. And I don't want to be heckled. पहले तो यहां बैठकर जब आप बात करते हो डायनेस्टी की, राजनाथ सिंह son पंकज सिंह is an MLA, but he doesn't hold a cabinet position. By that logic, can I finish? By that logic, even Ashok Gehlot's son Vaibhav Gehlot, he fought an election from Jodhpur last time. He lost to Gajendra Singh Shekhawat. This time he's been given a seat from Jalore. तो यदि कोई चुनाव लड़कर आता है, that is not परिवारवाद. परिवारवाद किसे कहते हैं? जेपी नड्डा जी के बेटे तो अभी अध्यक्ष नहीं बनेंगे. जेपी नड्डा जी का टर्म एक्सपायर हो रहा है जून 2024 में. आई कैन चैलेंज, यहां बैठे पैनल में जितने भी लोग हैं, प्रणेश, इंक्लूडिंग यू हु इज अ सीजन्ड एंकर, नोबडी नोज बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कौन होगा. 1998 से सोनिया गांधी was the Congress chairperson, barring the brief period from 2017. Pranesh, I refuse to debate like this. No. I have told my team to put the faders down. One person speaks at a time, I refuse to debate like this. Can I make my point? परिवारवाद डायनेस्टी उसको कहते हैं जब 1998 से 2017 तक Sonia Gandhi was the Congress president for a brief period from 2017 to 2019. Rahul Gandhi was the Congress president. फिर वापस सोनिया गांधी became the Congress president. अभी हाल ही में 2022 से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं. तो डोंट ट्राई एंड कंफ्यूज इश्यूज. सेकंड थिंग, यहां किसी ने अमित शाह जी के बेटे के बारे में बात की कि जय शाह क्या बहुत बड़े क्रिकेट के
खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। तो पहली बात तो ध्यान से सुनिए, बीसीसीआई इज अ प्राइवेट बॉडी। बीसीसीआई इज नॉट अ बॉडी दैट कम्स अंडर द एजेस ऑफ द स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट, जब आप अमित शाह के बेटे जय शाह पे लांछन लगाते हो, थोड़ी शर्म करिए। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन थे, और वैभव गहलोत क्या बहुत बड़े गेंदबाज हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, क्या बहुत बड़े स्पिनर हैं, क्या बहुत बड़े पेस बॉलर हैं? तो इसलिए यहां बैठकर आप जय शाह पर कटाक्ष मत करिए। माय लास्ट पॉइंट, संविधान की दुहाई देने वालों के लिए प्लीज प्रणेश, जस्ट लास्ट पॉइंट। द डेट वॉज 27 फरवरी 2002, गुजरात राइट्स। 20 साल तक नरेंद्र मोदी was hounded, maligned, targeted, attacked. He finally got relief from Supreme Court in June 2022. जब Supreme Court ने कहा there was no criminal conspiracy by Narendra Modi, he has to be given an unconditional clean check. Right. Okay. नरेंद्र मोदी let me bring in Sameer Chowgawkar once again. समीर जी, पॉलिटिक्स में परसेप्शन सब कुछ है। अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए क्या संदेश है, आम आदमी के लिए क्या संदेश है? ये आज का जो स्पीच जिस पे हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि वो जिस कट्टर ईमानदारी की बात कर भारतीय राजनीति में आए थे, और दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से उन पर भरोसा कर उन्हें दिल्ली में 2 बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी थी, इतनी मेजोरिटी दी थी कि कांग्रेस का खाता तक निकला, और भारतीय जनता पार्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी की सीटें 8 पर आकर टिक गई थी। उस मैंडेट के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए किया, आप देखिए कैसा घर उन्होंने बनाया था, शीश महल, हवा महल, करोड़ों रुपए के उसके अंदर घर के अंदर उन्होंने खर्च किए, अपनी सुविधाओं पे खर्च किए, जनता के लिए काम नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि देश की जनता और दिल्ली की जनता अब उनके साथ विश्वास खोते जा रही है, और वो जानते हैं कि अब चुनाव सर पर है, ऐसे में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट देना होगा। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या अरविंद केजरीवाल ये जानते नहीं है कि जेल से तो हफ्ता वसूली के गिरोह चलते हैं? क्या कोई सरकार जेल से चलती है क्या? अरविंद केजरीवाल अगर इतना नैतिक रूप से ईमानदार है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आपके पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, आप बनाइए किसी विधायक को चीफ मिनिस्टर, आप कोर्ट का सामना कीजिए, आप केस का सामना कीजिए, पाक साफ होइए, उसके बाद आके फिर मुख्यमंत्री बनिए। आपको किसने रोका है? आपकी पार्टी, आप जब चाहे मुख्यमंत्री बनिए। पीयूष जोशी, किसने रोका है? बनूंगा मैं ही। क्या और कोई कट्टर ईमानदार नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, एटलीस्ट इन द इंटरिम? देखिए, अभी तो जब तक कि अगली रिमांड के ऊपर फैसला नहीं होता, आई थिंक मिस्टर केजरीवाल इज गोइंग टू कंटिन्यू रनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द ईडी कस्टडी, दैट हैज बीन मेड एम्पली क्लियर। एंड टू आंसर सर दैट कि जेल के अंदर से गिरोह चलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये मोदी के नए भारत बनने के पहले जेल के अंदर से गिरोह ही चलते थे। अब ये मोदी का नया भारत है, जहां पे विपक्ष के नेताओं को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जो भारी बहुमत से हैं, जिनको आप चुनाव में हरा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो एमसी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उनको जेल में बंद किया जाए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए, उन्होंने मजबूर किया जाए। तो केजरीवाल एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल नेता है, इसीलिए आपने नंबर 2, 3, 4 सबको अंदर कर रखा है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको वो अनकंफर्टेबल कर देता है। नंबर 2, 3, 4 की तो बात कर रहे हैं, 1, 2 का 4 जो हुआ है उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। जो मनी ट्रेल जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, पीयूष जी मैं आपसे, alleged money trail, alleged money trail, of course, alleged, everything is alleged. 1 minute, I just want to ask you, Piyush ji, Kamru Zaman sir, I am coming to you sir. Piyush ji, it's simple question. आप बोल रहे हैं कि एजेंसीज मिसयूज करके ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। When the BJP returned to power after 2 terms of UPA, तो कांग्रेस UPA 2 की सरकार थी, इलेक्शन में ईडी सीबीआई तो उनके पास थी, फिर ये जीत कैसे गए? सर, क्योंकि बेसिकली जो लेवल का काम कर रहे हैं ना, उसके लिए एक फासिस्ट सोच होने की जरूरत है, जो आरएसएस के एक स्वयंसेवक को नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मिसयूज ऑफ एजेंसीज आपने बोला, मैं बस पूछ रहा हूं आपसे, एनीबडी हु इज वाचिंग दिस विल वंडर इफ एजेंसीज वर इंडीड मिसयूज्ड, तो फिर उस समय क्यों नहीं हुआ? आप कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, या रोक लेते मिसयूज? Look, Congress did not misuse the agencies to this extent, number 1. Number 2, whatever misdoings the Congress Why did Arvind Kejriwal say, I will put Sonia Gandhi and Sheila Dikshit in jail? Pranesh ji, you asked me a question, allow me to answer it. No, I am asking your question because you are not answering my question.
I'll give you a brief answer now. What you're saying, and whatever misdoings Congress did, they have been punished by the people of the country in 2014, and they were put out of the power. Now, should we question the current government or not? Should we question the government? No, you question, but you know, but then the BJP will also meet the same fate if you are misusing what you are saying about the Congress party, because you would remember, आपने बोला 3-4 साल पुरानी बात है, किसी को ये I don't think कोई भूला होगा things that Arvind Kejriwal said about late Sheila Dikshit. Pranesh ji, it is an unprecedented turn of events in the history of modern India. Why it is unprecedented? Because never before in the history of modern India since 1947, this country has seen the constitutional organizations weakened to the extent. Okay, they have been, Sanju Verma, that's a big charge. And this is agencies being misused. Okay, Pranesh, I just want to ask one more thing. You know, यहाँ पर बैठकर before answering your question, there's a viewer who's asked me to say this on air. He watches your show. यहाँ पर बैठकर पीयूष जोशी ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर इल्जाम लगाए. वो ये कहते हैं कि इनको जवाब दीजिए, क्या चेयरमैन ऑफ आईपीएल और जो बीसीसीआई में कई पोजीशंस में रह चुके हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और इनके हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी, वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ सोनिया गांधी and राहुल गांधी and प्रियंका वड्रा, राजीव शुक्ला क्या बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े गेंदबाज हैं. राजीव शुक्ला के बारे में आप कुछ बोलोगे नहीं और यहां बैठकर जय शाह पर आप भाषण दोगे. So zip it. Now Pranesh, I will answer your question. I want to just say one thing, Pranesh. Let your audience decide because your audience is a very aware audience. बीजेपी की बात छोड़िए. Arvind Kejriwal had asked through his lawyer Abhishek Manu Singhvi, the Delhi Rouse Avenue Court, to quash the summons issued against him. The Rouse Avenue Court refused to do so. Abhishek Manu Singhvi went to the court to say that Arvind Kejriwal should not be arrested. The court refused to stay Kejriwal's arrest. आप भाजपा को गालियां देते हो टीवी डिबेट पर, चाहे मनीष सिसोदिया हो. मनीष सिसोदिया को जेल किसने भेजा? भाजपा ने या नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा. सत्येंद्र जैन को जेल किसने भेजा? जेल की सलाखों के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने नहीं भेजा. संजय सिंह को जेल की सलाखों के पीछे किसने भेजा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने नहीं भेजा. इसीलिए डोंट अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बिकॉज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रदेश has the powers of a civil court since 2003. It's a statutory. Kamruzaman Chaudhary, I just want to ask you, sir. You would remember Arvind Kejriwal. Yeah. Things he said about Sheila Dikshit. Things he said about the Congress party and other leaders. Your leaders, I just played out the reaction. I don't want to repeat what was said. But what is the political compunction of the Congress party today? Is it only that you can't take on Narendra Modi politically, which is why you need allies, even if it means corrupt allies? No, don't be judgmental and don't become a spokesperson of the Bharatiya Janata Party here on the national television, Pradesh. I am very sorry. No, it's a question, sir. You can call me names, but it's a question. The entire process, no, I am coming to that. Please permit me 30 seconds. In this process is the punishment out here in Arvind Kejriwal case. Even in Hemant Soren's case, this is the... What was the reason for ED arresting Arvind Kejriwal? Because he refused to attend to the summons of the ED for 9 times. That is the only reasoning we got, apart from all the charges. Now, why did you leave one West Bengal minister, despite receiving ED summons for not 8 times, not 9 times, but 11 times? What is the understanding between that minister and the ED or Narendra Modi out here? There is no answer out here. Now the premise that you are talking about, that if Arvind Kejriwal had spoken ill about Sheila Dikshit or the Congress party has already lost election in 2014 because of it, has lost election in 2019 because of it. But tell me the one reason. When BJP released the same video about the corruption of Hemanta Biswa Sharma, when the Prime Minister standing on the floor of the election campaign talks about putting Deputy Chief Minister of Maharashtra Ajit Pawar behind bars for the massive corruption scandal,
Why don't you charge Narendra Modi about it? That why are you taking Sanju corrupt Verma, quick people into response. your party alliances? Quick response from the BJP. You know, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये है कांग्रेस का हाल. Forget about past videos, Pranesh. Just less than 24 hours back, Congress leaders have supported Kejriwal's arrest, and I will tell you who they are. One is Sanjay Nirupam, the so-called Bahubali of Mumbai Northwest, Ravneet Bittu from Punjab, Pratap Bajwa, senior Punjab Congress leader, and Sukhpal Singh Khera, senior Congress leader, who was arrested by the Bhagwant Singh Mann government a couple of months back. They have said, जो हुआ बहुत सही हुआ. ईडी ने केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की है, इससे ज्यादा खुशखबरी तो कुछ हो ही नहीं सकती. अरे आपके खुद के कांग्रेस के नेता केजरीवाल की अरेस्ट की वाहवाही दे रहे हैं मोदी सरकार को. इसलिए डोंट सिट हियर एंड मेक दिस अबाउट मोदी एंड अमित शाह. द फैक्ट इज investigation agencies are independent. The Modi government is committed to corruption. The cases against Himanta Sharma, Subhendu Adhikari. We've run out of time on this debate, but Kamruzaman Chaudhary, I just want to say this to you. While you were saying that, you know, 1 minute, Kamruzaman ji, the thing that you said, that ED has done this because it has been given instructions from political bosses. Arvind's legal team, Mr. Kejriwal's legal team had an opportunity before the court. Are you saying the courts are also controlled by the BJP? If you're saying that, then I don't know what to say. Let's leave it at that. I thank all of you for joining us on debate number 1. Viewers, we're taking a short break. When we return, more news and debate on the other side. Stay with us.